فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی نئی عمارت کا آئندہ ماہ جنوری میں سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ راجندر نگر میں 100 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی ہے، جس پر تلنگانہ ہائی کورٹ کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو اس سلسلے میں ضروری انتظامات کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے ڈاکٹر ایم چنا ریڈی ہیومن ریسورس انسٹی ٹیوٹ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ الوک ارادے اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا۔ ہائی کورٹ کی موجودہ عمارت کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے نئی عمارت کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے وکلاء نے چیف منسٹر کی توجہ مبذول کرائی۔ چیف منسٹر سے خواہش کی گئی ہے کہ نئی عمارت کے لیے راجندر نگر کے حدود میں 100 ایکڑ اراضی الاٹ کرتے ہوئے ضروری فنڈز منظور کیے جائیں۔ چیف منسٹر نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور عہدیداروں کو ضروری اقدامات کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے تلنگانہ کے نئے اضلاع میں کورٹ کمپلیکس کی تعمیر کے سلسلے میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ہائی کورٹ کی موجودہ عمارت ہیریٹیج عمارت ہے، لہٰذا اس کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ موجودہ عمارت کی تزئین نو کرتے ہوئے سٹی کورٹ یا دیگر عدالتوں کی عمارت کے طور پر استعمال کرنے کا چیف منسٹر نے تیقن دیا۔ جائزہ اجلاس میں چیف سیکریٹری شانتی کماری، چیف منسٹر کے پرنسپل سیکریٹری شیشادری حیدرآباد اور رنگا ریڈی کی ضلع کلکٹر IAS عہدیدار نوین متل اور دوسرے شریک تھے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں 6 ریاستی وزراء نے اپنی وزارتوں کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر اور وزیر فائنانس بھٹی وکرمارکا، وزیر صحت دامودر راج نرسمہا، وزیر مال پی سرینیواس ریڈی، وزیر آبپاشی و سول سپلائز اتم کمار ریڈی، وزیر بہبودی خواتین و اطفال ڈی ستکا اور وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے اپنے چیمبرز میں وزارت کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ نئے وزراء کے چیمبرز میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد وزراء نے بعض اہم فائلوں پر دستخط کیے اور عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ بھٹی وکرمارکا نے بعض اسکیمات کے لیے رقمی منظوری کی فائل پر دستخط کیے۔ RTC بسوں میں خواتین کو مفت سفر کی سہولت کے تحت وزیر فائنانس نے بطور سبسڈی 374 کروڑ کی منظوری دے دی۔ آروگیہ شری اسکیم کے لیے 298 کروڑ اور برقی سبسڈی کے طور پر 996 کروڑ جاری کیے گئے۔ بھٹی وکرمارکا نے میڈارم جاترا کے لیے 75 کروڑ فنڈز کو منظوری دی ہے۔ وزیر مال اور اطلاعات پی سرینیواس ریڈی نے محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے صحافیوں کی بھلائی کی اسکیمات اور محکمہ کی جانب سے حکومت کی 6 ضمانتوں کی تشہیر کا جائزہ لیا۔ اتم کمار ریڈی نے آبپاشی اور سول سپلائز کی فائلز پر دستخط کیے۔ وزیر بہبودی خواتین و اطفال ستکا کے جائزہ لینے کے موقع پر ارکان اسمبلی ناگراجو این راجندر ریڈی، پرنسپل سیکریٹری پنچایت راج سندیپ کمار سلطانیہ، کمشنر پنچایت راج ہنمنت راؤ، سیکریٹری پنچایت راج سمیتا سبروال اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ ضلع کلکٹر میدک راجوشی شاہ نے کہا ہے کہ سماج میں صحافیوں کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ سماج کو صحافیوں کی ضرورت ہے اور صحافت کا پیشہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ضلع کلکٹر میدک وائس گارڈنز میں مقامی صحافیوں کے اعزاز میں اسمبلی انتخابات میں اہم رول ادا کرنے پر پیش کیے گئے ظہرانہ پروگرام سکسیس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے موقع پر متعلقہ سرکاری عملہ و عہدیداروں کو اپنا بہترین تعاون پیش کیا، جو کہ قابل مبارکباد ہے۔ کلکٹر شاہ نے امید کا اظہار کیا کہ آنے والے پنچایت انتخابات اور پارلیمانی انتخابات میں بھی صحافیوں کا اسی طرح کامیاب رول رہے گا۔ کلکٹر نے کہا کہ صحافیوں کے رول ہی سے ریاست میں ضلع میدک رائے دہی میں سر فہرست رہا۔ اس پروگرام کو ضلع ایڈیشنل کلکٹرز جی رمیش وینکٹیشورلو، DRO پدما سری، صدر پریس کلب ڈی نریش، صدر الیکٹرانک میڈیا ضلع میدک ناگراج، صحافی محمد ریاض الدین، محمد فاروق حسین نے بھی مخاطب کیا۔ ڈسٹرکٹ سواٹن آفیسر راجی ریڈی نے تقریب کی کارروائی چلائی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پبلک ریلیشن آفیسر میدک کے علاوہ مقامی اردو تیلگو صحافیوں، الیکٹرانک میڈیا صحافیوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سپریم کورٹ نے دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کی جانب سے مبینہ شراب پالیسی گھوٹالہ کیس میں درخواست ضمانت خارج ہونے کے خلاف دائر نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس سنجیو کھنہ اور SVN بھٹی کی بینچ نے
दिए गए अपने हुक्म में कहा, हमने नजर ثانی की दरख्वास्तों और उनकी हिमायत में मौजूद बुनियादों का बगौर मुतालिया किया है। हमारी राय में 30 अक्टूबर 2023 के फैसले पर नजर ثانی का कोई जवाज नहीं है, दरख्वास्तें खारिज की जाती हैं। बेंच ने नजर ثانی दरख्वास्त को ज़बानी तौर पर सुनने से इनकार कर दिया और उसे चेंबर में ही खारिज कर दिया गया। ख्याल रहे कि आम तौर पर आइन के आर्टिकल 137 के तहत दायर नजर ثانی की दरख्वास्तों की जांच बहुत तंग बुनियादों पर की जाती हैं, जैसे कि कानून की गलतियां, रिकॉर्ड में वाज़ेह गलती वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर को जमानत देने से इनकार किया था। फैसला सुनाते हुए उसने कहा था कि अगरचे बहुत से सवालात का जवाब नहीं है, लेकिन 338 करोड़ रुपए की मुंतकली से मुतालिक एक पहलू आर्जी तौर पर कायम है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया के मुकदमे की समाअत 6 से 8 माह के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी और ये भी कहा कि अगर अगले 3 महीनों में मुकदमे की समाअत आहिस्ता होती है तो वो नई जमानत के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने इस साल 26 फरवरी को और ईडी ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। तृणमूल कांग्रेस लीडर महबूबा मोइत्रा ने लोकसभा से उनके अखराज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिस पर समाअत की जाएगी। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच केस की समाअत करेगी। मोइत्रा ने अपनी अर्जी की जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। आइन के आर्टिकल 32 के तहत अदालत उज़्मा में दायर अपनी दरख्वास्त में मोइत्रा ने अपने अखराज के फैसले को नामुनासिब, गैर मुनसिफाना और मनमानी करार दिया। काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल के कृष्ण नगर पार्लिमानी हल्के से रुकने पार्लियामेंट मोइत्रा को 8 दिसंबर को पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी से निकाल दिया गया था। उनके खिलाफ कार्रवाई पार्लियामानी सवालात के लिए नकद के इल्जाम पर अखलाकियात कमेटी की तहकीकात के बाद की गई थी। पार्लियामानी सवालात के लिए नकद रकम के मुबैना इल्जाम पर मोइत्रा की बर्खास्तगी का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा था, ये ऐवान कमेटी के नताइज को कबूल करता है कि रुकने पार्लियामेंट महबूबा मोइत्रा का बतौर रुकने पार्लियामेंट तर्ज अमल गैर अखलाकी था और उनका रुकने पार्लियामेंट रहना मुनासिब नहीं है। अपने इखराज के फौरन बाद मोइत्रा ने कहा था कि अखलाकी पैनल के पास इसे निकालने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि ताजिर से नकद रकम लेने का कोई सबूत नहीं है, जो कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे और उनके साबिक साथी जे अनंत देहादुराई ने लगाया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें हीरानंदनी और देहादुराई से जरा करने की इजाजत नहीं दी गई है। आसाम की हेमंता बसवा शर्मा हुकूमत ने रियासत के 31 अजला में 1281 मदारिस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके लिए हुकूमत ने उन्हें रियासती तालीमी बोर्ड के तहत बाकायदा स्कूलों में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आसाम हुकूमत ने जनवरी 2021 में कानून पास किया था, जिसमें रियासत के तमाम सरकारी मदारिस को बाकायदा स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था। इससे 731 मदारिस और अरबी कॉलेज मुतासिर हुए। इनमें प्राइवेट मदारिस को छोड़कर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, SEBA, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, AHSEC और रियासती मदरसा तालीमी बोर्ड के मातहत थे। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बसवा शर्मा ने इस साल मार्च में कर्नाटक में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत तमाम मदारिस को बंद करने का इरादा रखती है और अब तक आसाम में 600 मदारिस बंद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जल्द ही रियासत के तमाम मदारिस को बंद कर दिया जाएगा। वो सूबे में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां चाहते हैं, न कि इस्लामी मजहबी इदारे। साथ ही बांग्लादेशी पनाह गजीनों के मामले पर उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश से आसाम आते हैं और हमारी तहजीब व सकाफत के लिए खतरा है। रियासत के 1281 मदारिस के नाम बदल कर मिडिल इंग्लिश स्कूल्स कर दिया है। अब उन्हें नए नाम से पुकारा जाएगा। महकमे तालीम के वजीर रिनोज पेगू ने ऐलान किया है कि आसाम के तालीमी निज़ाम में इकसानियत लाने के लिए फैसला किया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मदारिस की देखभाल पर सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2000 रुपए। हर 5000 की खरीदारी पर 1000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।
डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स रियाज में मजीद बड़े रकबे पर अमेरिकी सिफारत खाना नई इमारत तामीर होगी जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ी एम्बेसी होगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अमेरिकी सिफारत खाने की नई इमारत का संग बुनियाद रख दिया गया। तकरीब में अमेरिका और सऊदी अरब के मुतादिद ओहदेदार शरीक हुए। रियाज के डिप्लोमेटिक जोन में अमेरिकी सिफारत खाने की नई इमारत 27.5 एकड़ रकबे पर कायम होगी। सिफारत खाने का डिज़ाइन सऊदी अरब की रिवायती तर्ज तामीर और जदीद अंदाज पर मुश्तमिल है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि रियाज में अमेरिका का नया सिफारत खाना दुनिया भर में अमेरिका के बड़े सिफारत खानों में से एक होगा। अल अरेबिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, अमेरिका सऊदी अरब का दोस्त मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शिराकत है। बेशतर मसाइल पर फरीकीन का नुक्ता नजर एकसां है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और मुमलिकत के दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी हैं, ताहम सऊदी अरब इख्तिलाफात से ज्यादा हम आहंगी वाले नुकात पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखता है। सोशल मीडिया पर तकरीब की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा, यह मौका मुमलिकत और अमेरिका के दरमियान तवील मुद्दती ताल्लुकात में संगमेल की हैसियत रखता है। इसराइल ने अपने अहम हिमायती अमेरिका की तरफ से बढ़ते हुए दबाव के पेश नज़र कहा है कि वो गजा जंग को बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ या इसके बगैर भी जारी रखेगा। AFP के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की जानिब से जंग बंदी के लिए एक करारदाद की भारी अक्सरियत से हिमायत के अगले ही दिन गजा पर मजीद हमले हुए और गजा शहर, खान यूनुस और रफा में झड़पें शुरू हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में 193 में से 153 ममालिक ने जंग बंदी का मुतालबा किया। इसराइल ने अपने अहम इत्तेहादी की तरफ से तनकीद के बावजूद जंग जारी रखने का इंदिया दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि दुनिया की अक्सरियत इस जंग बंदी की हिमायत कर रही है, लेकिन वो अंधाधुंध बमबारी से इस हिमायत को खो रही हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा एली कोहन ने कहा है कि इसराइल हमास के खिलाफ बैनुल अक़वामी हिमायत के साथ या इसके बगैर जंग जारी रखेगा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि मौजूदा मरहले पर जंग बंदी दहशतगर्द तंजीम हमास के लिए एक तोहफा है जो इसे दोबारा उभरने और इसराइल के बाशिंदों को धमकियां देने की इजाज़त देगी। बादशाह इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल साबित कदम रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जंग आखिर तक जारी रखे हुए हैं, हमें कोई भी चीज नहीं रोक सकेगी, हम फतेह हासिल करने तक इसे जारी रखेंगे। बाइडेन के कौमी सलामती के मुशीर जेक सेलवान इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इसराइल जाएंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ने गुज़िश्ता रोज कहा कि जंग के बाद गजा के लिए कोई भी मंसूबा जिसमें फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप या मज़ाहमती धड़े शामिल ना हो एक फरेब है। गजा के महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक इसराइल के फिजाई और ज़मीनी हमले में 18,600 से ज़ायद फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। गजा शहर और आसपास के कस्बे खंडरात का ढेर बन चुके हैं और तकरीबन 19 लाख लोगों को बेघर कर दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तकरीबन 24 साल से रूस में बरसर इख्तिदार हैं और गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने ऐलान किया था कि वो दोबारा इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सदर बनने से पहले वो KGB इंटेलिजेंस एजेंसी में अफसर के तौर पर काम करते थे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर मगरबी ममालिक के खिलाफ हमला आवर हो गए। उन्होंने मगरबी ममालिक को आलमी निज़ाम पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगली सरबराही कॉन्फ्रेंस रूस की सरबराही में मुनक़्क़द की जाएगी जो एक मुनसिफाना आलमी नज़्म के क़याम के लिए वक़्फ़ होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगली ब्रिक्स सरबराही कॉन्फ्रेंस रूस के शहर काजान में होगी। इस दौरान हम मौजूदा सूरत हाल को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ने की तहरीक देंगे। उसूलों पर मुबनी वर्ल्ड ऑर्डर असल में मौजूद नहीं है, ये हर रोज सियासी एजेंडों, मुफादात और प्रोपोगंडे के मुताबिक बदलती रहती हैं। हम अपने सरबराही इजलास में वाज़ेह करेंगे कि इस दुनिया में और भी ताकतवर ममालिक हैं जो क़वानीन पर अमल नहीं करना चाहते। काबिल ज़िक्र बात यह है कि दीगर ताकतवर ममालिक बुनियादी पॉलिसियों की बुनियाद पर तरक्की करना चाहती हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका का मुखफ़िफ एक गैर रस्मी शिराकतदारी है जो रुकन ममालिक के दरमियान ताउन और मवासिलात को फ़रोग़ देती हैं। ब्रिक्स ममालिक के दरमियान कोई रस्मी या कानूनी तौर पर पाबंद मुआहदा नहीं है। ब्रिक्स की इस्तिलाह जिम और नील के जरिए बनाया गया था। उन्होंने इस इस्तिलाह को इस वक्त आलमी मईशत में इन ममालिक की सलाहियत पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.